Dear students, here is the first question regarding the chapter triangles. I shall read the question for you. A vertical pole of length 8 meter cast a shadow 6 meter long. Means there is a vertical pole. Means we are taking here, let AB be the pole. We are taking AB as the pole. So this is a pole. Means it can be electric post or anything, whatever. It's a vertical pole. Means straight एक pole है. उसका लंबाई दिया है 8 meter. और उसका छाया और उसका shadow 6 meter में है. It's falling as 6 meter long on the ground. At the same time, means in the same time itself, a tower, here I am taking the tower as DE, a tower, a building, a tower, it also casts a shadow of 30 meter length. Here you can see the length of the shadow is that it means sun is somewhere here. Okay, just imagine that sun is somewhere here, and from this sun, the light is coming all the way, and when the light is falling on the tower, here you can see there is a shadow. When the same light is falling on the pole, here you can see AC is the shadow, and just we are joining these two things so that we will get a right angle triangle. We are taking every time as it is given that it's a vertical pole, we will take it as 90 degree. Okay, we will take it as 90 degree. So here actually these typical types of questions maximum it used to come in the topic of trigonometry when we are studying there, but here it came because we can prove this by using triangles theorems also. So first of all, you have to mention your diagram. When you have drawn your diagram, you have to mention the diagram. AB is the vertical pole and AC is its shadow. And likewise, DE is the vertical pole, vertical tower, and DF is its shadow. Okay, it's DF, it's not DE, it's DF. Okay, here it is. I made a mistake. So DF is its shadow. So now we are joining these two things, BC and EF. We have mentioned that one. And let us take this as X meters. Forget not, we have to find the height of the tower. So here it is a tower. So whatever we have to find, we are taking it as X meters. We don't know what it is. We are taking it as X meters. So what we have, we wrote it. Now see here, whenever you're getting two triangles, very important to prove the similarity between two triangles. Even if you want to find the, length of any side. 9th class we have studied like this. दो ट्राइंगल्स आपके सामने दिया है, ट्राइंगल्स का लंबाई, कोई भी एक ट्राइंगल का एक साइड का लेंथ आपको निकालना है, नहीं है तो एक साइड एक ट्राइंगल का एंगल मेजर आपको निकालना है, तो उस वक्त आप क्या करेगा, वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके साबित करने के लिए प्रयास करेगा. वी विल ट्राई मैक्सिमम टू प्रूव दैट दोस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्राइंगल्स का एंगल भी बराबर होगा, साइड्स भी बराबर होगा. बट इन 10th क्लास वी आर स्टडीइंग अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. व्हाट इज सिमिलैरिटी? सिमिलरिटी मीन्स दोनों ट्राइंगल सिमिलर है का मतलब उसका हर एक एंगल्स इक्वल होगा, यानी कि इधर 90 है तो ये भी 90 होगा, इधर जितना भी हो उतना ही होगा, इधर भी, इधर जितना भी एंगल निकलेगा उतना ही आएगा इधर भी. ठीक है, एंगल्स तीनों बराबर होगा, लेकिन साइड का लेंथ बराबर नहीं होगा. इट मे नॉट बी, आई टोल्ड यू इट मे नॉट, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, बट देयर इज अ प्रोपोर्शन. इसका एक प्रोपोर्शन होगा इधर. सो अगर ये दोनों सिमिलर करके अगर आपको स्थापित कर सकता है तो surely you can prove everything. So how you can prove the similarity? Let us check it out here. In triangle, these two triangles we took it, and angle A is equal to angle D. You know both of them are 90 degree. Angle C and angle F, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा. क्यों? क्योंकि सन का एलिवेशन, when sun is falling on both of them, the elevation of the sun is same. So उसका वजह से इसका जितना भी इधर एंगल निकलेगा वो दोनों का बराबर होगा, because sun is not going to change. Tower and this pole is not going to change. It's not going to change. It's static. It is fixed. So anyhow, the angle measure will be also the same. So that's why I wrote angle C is equal to angle F. That means angular elevation of sun. Elevation करता है उसको ऊपर से नीचे की ओर जो आता है उसको elevation करता है. Okay, it's elevation. So now two angles similar equal करके साबित कर दिया, तो A similarity का हिसाब से क्या कर सकता है, वो दोनों triangles similar करके स्थापित कर सकता है. And now when you prove the similarity between these two triangles, it's very easy now. See here, as you prove the similarity, now from the similarity what all things, क्या क्या लिख सकता है इधर, तो ये देखिए, here is the important thing which you have to notice. दोनों similar है तो क्या कर सकता है, AB divided by, बोलिए AB, फर्स्ट 2 है तो इधर का दोनों DE इज इक्वल टू, पहला और तीसरा ले लीजिए, AC तो इधर भी पहला तीसरा आएगा नीचे, DF इज इक्वल टू, इधर सेकंड और थर्ड ले लीजिए, BC बाय, इधर BC का हिसाब से इधर क्या है, EF है, EF है. लेकिन मैंने इतना नहीं लिया था इधर, राइट. ये तीनों इसके अंदर से लिख सकता है,
You can write all these three things from this similarity, but I did not write all the three things. Why? Actually, I have nothing to do with these two sides because nothing is given. BC और EF के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, so nothing to do with that thing. So वो लेने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझकर BC ये पार्ट को मैंने छोड़ दिया क्योंकि BC नहीं दिया है और EF भी नहीं दिया, तो ये लेने का क्या जरूरत है? नथिंग. सो इसलिए वो जानबूझ के छोड़ के बाकी दो ले, बिकॉज यू वांट टू नो, यू मस्ट नो व्हाई आई टुक लाइक दिस. अगर BC और EF का बारे में कुछ ना कुछ आपको ढूंढना है तो उस वक्त जो दिया हुआ साइड उसके हिसाब से आप इधर प्रोपोर्शन बनाएगा, ठीक है? लाइक दैट यू हैव टू मेक इट. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज you will get the value of x as 40. Here I will tell you one more easy trick for you. अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए sometimes it happens that अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया, 1 मार्क के लिए, फिलहाल जो है 3 मार्क के लिए आया था इसलिए इतना बनाया. अगर ये 1 मार्क के लिए आया तो see how I am doing it in 1 mark क्वेश्चन. 1 मार्क में भी ये कर सकता है, ऐसा दिया है, ओके. एंड वी हैव टू प्रूव, क्वेश्चन तो इतना ही है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने फिगर बनाया. फिगर बनाने के बाद इधर x दिया है. सो देखिए ये दोनों अगर सिमिलर है के स्थापित कर दिया तो कैसे स्थापित कर सकता है? ये रहा, ये दोनों 90 है, हो गया एक एंगल. ये दोनों बराबर है क्योंकि एलिवेशन दोनों का बराबर ही होगा. दो एंगल्स बराबर है तो AAE बाई AA क्राइटेरियन व्हाट वी कैन से, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PEF. कर सकता है ना? सो कर दिया. तो इसका मतलब क्या है? मैंने पहले से कहा था ये दोनों बराबर हो सकता है, नहीं तो प्रोपोर्शन हो सकता है. देयर इज अ प्रोपोर्शन. तो पहले इधर तो कितना है करके हमको नहीं पता है क्योंकि इधर 8 दिया, इधर x दिया, लेकिन इधर देखिए 6 है, इधर 30 है. अगर इधर 6 और इधर 6 दिया है, मान लीजिए इधर 6 और इधर 6 दिया है तो डेफिनेटली वी विल राइट इधर 8 है तो पक्का इधर भी 8 होना चाहिए क्योंकि ये दोनों सिमिलर है. लेकिन इधर देखिए 6 और 30, 6 का कितना गुना है 30? हाउ मच टाइम्स इज 30? 6 5s are 30, 5 टाइम्स, तो 8 into 5, 8 5 टाइम्स आर 40, तो 40 है आंसर. हो गया आंसर, क्लियर. सो 1 मार्क के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय सीइंग यू कैन राइट इट. अगर मान लीजिए इधर 30 की जगह 12 दिया है, इमेजिन दैट इधर 12 मीटर इज गिवन, सो 6 into 2 is 12. सो इधर क्या होना चाहिए? 8 into 2, दिस विल बी डेफिनेटली 16. सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट if it is a 1 mark question. 1 mark question पे इतना करने की जरूरत नहीं है. In 1 or 2 seconds you can find out the answer. I hope you understood. Coming down to the second question, here a figure is given and what things are given? DE is parallel to OB. DE is parallel to OB. EF is parallel to BC. Where is EF? Here raha. EF is parallel to BC. Then we have to prove that DF, where is DF? Here raha. DF is parallel to OC. Okay, so what is given you wrote it, what to be proved, क्या prove करना है वो भी लिख लिया. Now every time before doing this one you have to fix your eyes here. What you have to prove? You have to prove DF is parallel to OC. तो सच में DF parallel to OC है तो इसका मतलब क्या है? AD by DO should be equal to AF by FC है ना. इधर ध्यान दे, DF and OC, see here कौन सा ट्राइंगल के अंदर पड़ा है वो? AOC. I am drawing here, I shall draw it, cut it and draw it here. AOC means this right part, ये पार्ट, इतना पार्ट, राइट साइड का इतना पार्ट. ओके, AOC बीचों बीच से एक है DF. अभी थोड़ा साफ साफ आपको पता चलेगा ये कैसा है करके. ये दोनों पैरेलल है करके अगर आपको साबित करना है, DF और OC साबित करना है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हिसाब से अगर ये दोनों पैरेलल है तो AD by DO शुड बी इक्वल टू AF by FC है ना. ये दोनों पैरेलल है तो पक्का ऐसा होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी कॉल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. उसको उल्टा व्हाट इज द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? अगर ये साबित कर दिया AD by DO इज इक्वल टू AF by FC करके आपने साबित कर दी तो इसका हिसाब से कर सकता है. देखिए इस तरह एक प्रोपोर्शन निकल आया है तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है? DF और OC पैरेलल होना चाहिए तभी ना ऐसा आएगा. मींस अगर ये दोनों पैरेलल है तो इस तरह बनेगा, तो मतलब उसका उल्टा क्या है? इस तरह बन गया तो उसका मतलब this should be the condition. Clear? Like that. So you have to prove here DF and OC are parallel. So that means in other way you have to prove that this is correct. ये दोनों बराबर है करके साबित कर दिया तो उसके हिसाब से ये कह सकता है कि DF and OC are parallel. So by any means you have to prove this one. So क्या दिया है? DE is parallel to OB. So where is DE and OB? DE and OB
they are in the triangle ABO. I am drawing here ABO. ABO, this one ABO, बीच में से ED जा रहा है, ED, और क्या दिया है DE, यानी कि ये DE और O, this OB. Okay, it is not ABC, it is ABO, right? ABO है, okay. So this ED and OB are parallel दिया है, तो ये पैरेलल है, तो उसके हिसाब से बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या लिख सकता है, AE by EB is equal to AD by DO, ये रहा, right? We wrote it. Now let us take the second part. दूसरा क्या दिया है, EF and BC. EF कहाँ है, ये रहा EF and BC, सामने ही है. So let us take that triangle. That is ABC triangle, right? ABC, बीचों से EF दिया है कि ये दोनों पैरेलल है, तो AE by EB is equal to AF by FC, ये रहा AE by EB is equal to, so by basic proportionality theorem, second one we got. So 1 and 2 देखिए, दोनों के LHS दोनों बराबर हैं, AE by EB is equal to AE by EB. In 9th class we have studied about Euclid's theorem. If the LHS of two equations are the same, then the RHS also will be the same. So इसके हिसाब से क्या कर सकता है, AD by DO is equal to AF by FC by these two things. तो ये स्थापित कर दिया, राइट? मैंने पहले से कहा था ना, ये स्थापित कर दिया, उसके हिसाब से क्या कर सकता है, implies का मतलब that means DF is parallel to OC by the converse of basic proportionality theorem. You got it? Okay. Coming to the next question below that one. In the figure of triangle ABC, D divides CA in the ratio 4:3. Where is D? Here D is there. It divides CA, not AC, it divides CA. नीचे से ऊपर की ओर दिया है 4:3, यानी कि इतना पार्ट 4 है तो इतना पार्ट 3 होगा. So we will take it as 4x and 3x. Remember, every time I told you, whenever you are taking a ratio, that much x you have to take. 4x 3x because it's a proportion. सच में 4 और 3 नहीं है, it's a proportion. 4 के लिए 3, for 4 it is 3, like that. इधर 4 है तो उधर 3 होना चाहिए, यानी कि इधर 8 है तो उधर 6 होना चाहिए, right? That's the meaning of this one. Okay. So if it's also given that DE is parallel to BC. Okay, so I think it's a good question. Yeah. So these two things are also given. One, the ratio is given. Another, these two proportion is given. Now what is given? We have written it. D divides CA in the ratio 4:3. So that's why AD, we are taking this AD as 3K. Here it is 3K and CD as 4K. So first of all, whenever you're getting a figure, just draw a figure. Getting a question, you have to draw a figure, mark all the given things inside the figure, and then whatever you have to represent, just represent inside that one. So very fast from there you can pick it out here. नहीं तो क्वेश्चन से सीधा एक एक करके इधर निकाल के लिखने मीन्स उतना इजी नहीं है, समझ में नहीं आया सच में. So if you are drawing a rough figure for you, very fast you can figure it out. Whatever things are given inside the question, you can bring it. For example, here see area of BCDE. Where is BCDE? BCDE, ये रहा नीचे वाला पार्ट, इतना पार्ट, this much part BCDE. Area of ABC, total area, पूरा एरिया, इन दोनों का एरिया का proportion निकालना, रेशियो निकालना है. Okay. So first of all, here there are two triangles, ABC and AED, right? Let us prove the similarity between these two things. दोनों triangles देखिए, ABC, AED, दोनों में तो A कॉमन है, AED का A भी वही है, ABC का A भी वही है. So we can say angle A and angle A are common. When these two are already parallel, if they are parallel, we know these two angles are what we called corresponding angles, right? Corresponding angles. So उसका corresponding ये भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. मैंने इस तरह ले लिया, that's all. ऐसा मत सोचिए कि क्यों इस तरह नहीं लिया, वो भी ले सकते हैं, no problem. So हमको खाली दो angles equal है करके साबित कर दिया, तो A क्राइटेरियन से उन दोनों का सिमिलरिटी प्रूव कर सकता है. That's why actually one triangle is given here, it's a common. Then another one, these two angles are equal. So वो भी लिख लिया, ये रहा corresponding angles है. अब तो क्या कर सकते हैं? By AA criterion, what we can say is, by AA similarity criterion, we can say the first triangle AED is similar to angle ABC. Now these two similarity we wrote it. That means इन दोनों का area, सच में इधर मैंने area of ABC नीचे ले आया इसलिए क्योंकि इधर I am writing here for easiness I will tell you. इसका उल्टा ऐसा भी लिख सकता है, AED is similar to ABC. क्यों ABC मैंने ऐसा लिख लिया? क्योंकि इधर क्वेश्चन में दिया है ABC जो है नीचे की ओर दिया है ना,
नीचे की ओर आना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट में आना चाहिए, तो ये नीचे की ओर लिखना चाहिए। दैट्स व्हाई आई रोट इट लाइक दिस। नाउ इसके हिसाब से वी नो इट ए ई बाई, बोलिए, ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू ई डी बाई बी सी। ये सभी आपको मन में है ना, क्योंकि वो सिमिलैरिटी है। तो सच में इधर हमको एरिया चाहिए। याद है एरिया के बारे में मैंने क्या कहा था? व्हाट डिड आई गिव यू? आई टोल्ड यू इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया, ये सभी का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स एरिया ऑफ AED बाई एरिया ऑफ ABC करके लिख लिया तो सभी का स्क्वायर हो जाएगा। So that is the way how to find this one. There is only to by heart this thing, area of this one by area of that one, ये क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या आएगा करके एक एक बाय हार्ट करके पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको सिमिलैरिटी पता है तो सिमिलैरिटी के हिसाब से आपको प्रोपोर्शन बनाना आता है। पहले प्रोपोर्शन बनाइए, फिर आगे पीछे क्या करना है, एरिया ऑफ करके ऊपर नीचे लिख लीजिएगा। उसके बाद ये सभी को स्क्वायर दे दीजिएगा, हो जाएगा। सो इधर मैंने वैसे ही दिया है, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, देखा है, AD बाई AC, DE बाई BC, AE बाई AB, और सभी का स्क्वायर भी दिया है। सो इन सभी चीजों में क्या हमको पता, ये तीनों प्रोपोर्शंस दिया है, तीनों प्रोपोर्शन लेने की जरूरत नहीं है। तीनों तीन में क्या लेना है, AD और AC बस, क्योंकि वो दोनों साइड दिया है, बाकी सभी साइड्स के बारे में हमको जानकारी नहीं है, नथिंग इज गिवन। सो वो सभी छोड़ दीजिए, बस ये यही ले रहे हैं। AD कितना है, 3x है। AC कितना है, अच्छा AC पूरा नहीं दिया है तो इसका अंदर से निकाल सकता है। AC कितना होगा, इधर से इधर तक 3x है, इधर से इधर तक 4x है, तो 3x प्लस 4x कितना होगा, 7x, राइट। 3x प्लस 4x इज 7x, पूरा का स्क्वायर। सो 3k का स्क्वायर कितना होगा, 3k। यू कैन टेक k और यू कैन टेक x, ओके आई टुक हियर एज k, सो लेट मी राइट इट हियर। मैंने k करके लिया तो k लिखना पड़ेगा इधर, ओके। यू कैन टेक k और यू कैन, k का मतलब कांस्टेंट, दैट्स ऑल। यू कैन टेक k और यू कैन टेक x, नो प्रॉब्लम। इधर मैंने k लिख लिया इसलिए मैंने इधर बदल दिया, ओके। सो 3k एंड डिवाइडेड बाय 3k प्लस 4k ऑल टुगेदर इज 7k। 3k का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7k स्क्वायर, k स्क्वायर कट हो जाएगा, बाकी 9/49। अभी ये देखिए इधर तक आपने पहुंच गया, नीचे वाला पार्ट का सही आया, एरिया ऑफ ABC आया, लेकिन ऊपर का भाग AD ही है, इतना ही है। हमको क्या चाहिए सच में, ऊपर BCDE चाहिए, इतना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इतना निकालने का मतलब क्या होता है, इतना निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पूरा ABC का अंदर से इतना निकाल देगा तो बाकी जो बचा है वो है ना ये। टोटल ABC का अंदर से इतना माइनस करना है, टोटल ABC का अंदर से इतना माइनस करना है, तो वी विल यूज 1 माइनस ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये सच में ये इसलिए कर रहा है, अगला स्टेप में ABC ऊपर की ओर आएगा, वो जानबूझ के हमने 1 को माइनस किया दोनों साइड को, ठीक है। हमेशा याद रखना, इफ यू वांट टू ब्रिंग ए पर्टिकुलर पार्ट ऑन द लोअर पोर्शन, उतना भाग आपको चाहिए, पूरा के अंदर से कुछ ना कुछ निकालना है तो हमेशा 1 माइनस कर लीजिएगा, वेरी इजीली यू विल गेट द स्टेप। सो एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC, दैट इज इक्वल टू 49 माइनस 9 डिवाइड बाय, इधर देखा दोनों साइड में 1 माइनस किया है तो इधर 49 माइनस 9 ऊपर आएगा डिवाइड बाय 40। सो यू गॉट, ये क्या है, एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ AD, पूरा ABC का अगर इतना निकाल देगा तो बाकी क्या बचेगा, इतना ही ना। सो इसका जगह लिख लिया एरिया ऑफ BCDE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC, दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 49। दैट मीन्स इसका रेशियो कितना होगा, 40:40, क्योंकि रेशियो पूछा गया है तो आखिर में वो रेशियो में ले आना जरूरी होता है। दैट इज इक्वल टू 40:49। दिस इज व्हाट वी विल रीड एज 40:49। Clear? Here's the next question before you. In the given figure, ABC and DBC are two triangles on the same base. On the same base, ABC and DBC, same base है. If AD intersects BC at O, AD and BC they are intersecting at O, we have to show that area of ABC divided by area of DBC is equal to AO by DO. Okay. So I'm changing the figure into this portion because we have to फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है तो कम से कम उसका हाइट निकालना जरूरी होता है। वी नो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। सो इसको इस तरह थोड़ा मीन्स इधर तो अगर मैंने 90 डिग्री बनाया तो आपको समझ में नहीं आया था क्यों कैसे 90 आएगा करके थोड़ा डाउट आएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इस तरह लाइक दिस आई जस्ट ट्विस्टेड इट
so that now you can find it. Same diagram, दोनों same है. I have just made it like this for easiness that you can understand that this is the height. Now what I will given, we have written this one. क्या prove करना है वो भी लिख लिया. The दो constructions है. AE is perpendicular to BC. You can see here AE is perpendicular to BC and DF is perpendicular to the same base BC. दो perpendiculars बना. Perpendicular इसलिए बनाया कि half BH लेना है. BH लेना है ना. BH का मतलब height का मतलब उसका सीधा लंबाई होता है. So that's why we took it like this. Now let us prove the similarity between the two angles. You know here AOE and DOF. AOE ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल ये रहा ये, देन DOF ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों सिमिलर है करके साबित कर सकते हैं. कैसा? इन दोनों में ये दोनों 90 डिग्री है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 लिख लिया. और ये दोनों है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. सो दो एंगल्स बराबर आ गया. सो वी कैन से भाई ए सिमिलैरिटी, दोस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सिमिलैरिटी प्रूव किया तो इसका अंदर से क्या लिख सकता है? AE by DF is equal to AO by DO. बस उतना ही लिख लिया था. I did not wrote OE by OF क्योंकि इसका अंदर OE OF कुछ भी नहीं दिया है. हमको AO DO चाहिए, इसलिए बस उधर तक ले आया है. That's all. मैंने पिछले क्वेश्चन में भी वही कहा था. What you want, take only that much. Okay. So here goes the first equation. Now let us go to the we have to find the area. हमको area चाहिए because see something is similar. AO by DO reached here and we are almost very near to the answer. So here we can say area of ABC by area of DBC. वही चाहिए हमको, इसलिए वो लिख लिया. अभी area of ABC. Now look on the figure. ABC का area. Now see this is the figure. A, B, C. This is the height. AE is the height. तो ये क्या हो गया? एरिया हाफ इंटू बेस कितना है? BC इंटू इसका हाइट क्या है? AE. सो आई कैन राइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट BC इंटू AE. उस तरह इसका बोलिए, इधर का DBC का एरिया बोलिए हाफ इंटू दोनों का बेस बराबर है तो BC ही आएगा. हाफ इंटू बेस इंटू इधर का हाइट DF है तो DF लिख लिया. हाफ दिस टू विल कैंसल, दिस टू विल कैंसल, यू विल गेट AE बाई DF. तो इधर हमने लिख लिया था AE बाई DF क्या होता है? AO बाई DO है. सो AF के DF का जगह AO बाई DO लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC, you got it as AO by DO. That's it. That's all the proof. We have to prove that one, right? उतना ही prove करना था. Area of ABC by area of DBC is equal to AO by. See, really in this chapter there are plenty of proofs rather than questions. So whenever you're doing a proof, the main thing which you have to put in your mind is you have to prove the similarity between those two things. That's the first thing you have to prove. So find out the apt triangle. कौन सा triangle लेना है और कौन सा triangle दोनों similar करके साबित किया तो आपको आंसर तक पहुंच जाएगा, वो जाना जरूरी होता है. If you do it practicing again and again, you will get it. You will get an idea. Which because इधर का अंदर बहुत ज्यादा triangles हैं. ABE भी एक triangle है, ये भी एक triangle है, ABC भी एक triangle है, ये भी एक triangle है. So कौन सा दोनों triangle similar करके साबित किया तो आंसर तक पहुंच जाएगा. Like that. कैसा पता चलेगा? इधर देखिए AO is one side, DO is another side, right? AO is one side and DO is another side. So AO और DO चाहिए हमको. तो AO DO आने वाला ट्राइंगल्स लेना है. तो AO DO आने वाला ट्राइंगल्स क्या भी है? देखिए AOB भी आएगा, लेकिन मैंने वो नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैंने ये लिया तो कम से कम हमको क्या साबित करना है? दो एंगल्स बराबर करके साबित करना है. सिमिलरिटी के लिए कम से कम दो एंगल्स बराबर करके साबित करना है. अगर मैंने ABO लिया क्योंकि AO है इसका अंदर तो DO इसका अंदर है, तो मैंने ये दोनों लिया तो ये दोनों इक्वल है करके साबित कर सकता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से. ये है मेरे मन में. और एक और ट्राइंगल चाहिए तो क्या बोल सकता है ये दोनों इक्वल है करके कर सकता है? बिल्कुल नहीं. देयर इज नो प्रूफ. अगर ये दोनों पैरेलल है ऐसा कुछ तो करके दिया है तो कम से कम समथिंग यू कैन राइट, बट नथिंग इज गिवन. वो नहीं है. फिर उसका बाद मैंने सोचने लगा और कौन सा एंगल है. ये रहा, इस तरह भी एक एंगल निकल आ रहा है, एक ट्राइंगल निकल आ रहा है AOC करके, लेकिन उसका अंदर भी ये दोनों बराबर करके साबित कर सकता है, लेकिन उसका अलावा और एक और एंगल इक्वल है करके साबित नहीं कर सकता है. एक और एंगल इक्वल है करके साबित नहीं कर सकता है. इसलिए मैंने क्या किया, ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आई चूज दिस ट्राइंगल, बिकॉज हियर इट इज 90, हियर इट इज 90 and one more 90 degree is there. So by two angles
proving them that they are similar or they are equal, I can come to the AA criterion. So this is the way how to choose the right triangle, the apt triangle, the perfect triangle. Okay, this is the way how to understand mathematics, how to understand, how to prove something. Did you understand? So in every question, this thing should be there inside your mind. Then only you can go ahead. So keep on taking some questions and just find it what is there in the question. Question में क्या आपको prove करना है पहले उधर ध्यान दीजिए. और क्वेश्चन में कौन सा साइड है, वो साइड आने वाला ट्रायंगल कौन सा है, और वो ट्रायंगल का बारे में, यानी कि ये वाला अभी मैंने जो कहा वैसा ये एंगल, ये साइड आपको प्रूव करना है. एओ आने वाला कितना ट्रायंगल सही था, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल एओई है, एओबी है, एओसी है. इन तीनों ट्रायंगल्स में कितना जानकारी आपको ले सकता है उतना बताइए एक एक करके, उतना आपको सोचना है. हाउ मच थिंग्स आर इंक्लूडेड, हाउ मच थिंग्स यू कैन sort it out from that one. Choose that triangle. At least you have to prove two similarity, two equality of two triangles. For that one, you have to choose the triangles. Clear? Hope you understood. Here goes one more question before you. Here is a figure is given. PQR and QST are two right angle triangles. Okay. See here it is right angle at T and here it is right angle at R. It is mentioned there, and we have to prove that QR into QS, it is QR into QS, yeah, here it is equal to QP into QT. That much you have to prove. So from this one, how you will bring to the proof, it's very important. See here, we have mentioned them, whatever it is given. Now let us take those two triangles, PQR and PST. PQR and PST, these two triangles, SQT, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है, इसलिए वो दोनों लिया है. So, दोनों का राइट एंगल्स दोनों बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वो दोनों 90 डिग्री है, और दोनों में ये जो एंगल आ रहा है वो कॉमन निकल रहा है. दिस सी PQR inside this one, then TQS उसका अंदर भी यही एंगल आ रहा है, तो दोनों कॉमन ही है, कॉमन एंगल है. सो एक सिमिलरिटी से ये कर सकता है. सो फ्रॉम दिस वन, सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों सिमिलर है करके हमने साबित किया है. इसका अंदर से हमको क्या लिख सकता है, बोलिए सच में क्या लिख सकता है. PQ बाई, बोलिए SQ इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाई QR बोल दिया तो इधर क्या आएगा, QT इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई ST, है कि नहीं. सच में हमेशा हमारा मन में यही आएगा. तो इधर भी वही है, सेम थिंग, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दिया, सभी क्यू से शुरू हो रहा है, सभी क्यू से आ रहा है. तो क्यू वाला चीज क्या है, बस ये नहीं चाहिए क्योंकि इसका अंदर एक भी क्यू नहीं है, वो निकाल दीजिए. और शुरू से क्यू क्यू करके दिया है तो इसको उल्टा करके लिख लिया गया, क्योंकि पी क्यू और क्यू पी दोनों बराबर है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू पी बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू टी. दिस इज द वे हाउ आई मेड दिस वन. Every time your eyes should be on what you have to prove. उस तरह से आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ चीज और नहीं तो आपको मिला हुआ चीज को आपको क्या चाहिए उस पे आपको चेंज करना है. So don't simply, because in textbooks simply they will write, when examples are given they will simply write from here, they will write like this. So plenty of students they have a doubt. So कैसा पता चला कि उन लोगों को ये लेना है, सच में ऐसा ही है, क्योंकि तीनों तीन पहले लिख लिया बगल में, तीनों तीन लिखने के बाद हमको ये नहीं चाहिए क्योंकि वो नहीं दिया है तो वो निकाल दिया, तो बाकी दोनों लिया. बाकी दोनों लेते हुए भी पहले सभी क्यू से शुरू होता है, तो पी क्यू का जगह लिख लिया क्यू पी, दोनों बराबर ही है, और एस क्यू का जगह लिखिए क्यू लेस. अभी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यही मिलेगा. यू गॉट दिस वन इटसेल्फ, राइट. हियर इट इज क्यू आर इंटू क्यू एस, क्यू आर इंटू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू पी इंटू क्यू टी, क्यू पी इंटू क्यू टी हो गया. So this is the way how to find or how to get very near to your answer. Hope you understood this one.